Let us now understand the concept of fundamental frequency, harmonics and overtones. ये तीन कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग को तीन लाइन याद करने हैं. फर्स्ट लाइन जो याद करना है वो है लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी is called as fundamental frequency and it is also called as first harmonic. तो पहला लाइन अपने दिमाग में डाल दो. Lowest possible frequency is called fundamental frequency which is called first harmonic. Lowest possible frequency, fundamental frequency, first harmonic. ये तीनों एक ही चीज है. First thing to remember, fundamental frequency is the lowest possible frequency and it is also called as first harmonic. Fundamental frequency is the lowest possible frequency and it is called as first harmonic. Fundamental frequency is the lowest possible frequency and it is called as first harmonic. ये याद कर लिया. फिर दूसरा लाइन जो हमें याद करना है वो है harmonics are integral multiples of fundamental frequency. What is the line? Harmonics are integral multiples of fundamental frequency. Harmonics are integral multiple of fundamental frequency. Harmonics are integral multiples of fundamental frequency. Harmonics are integral multiples of fundamental frequency. तीसरा लाइन जो हमें याद करना है वो है frequency just after fundamental frequency is called as first overtone. Frequency just over and above the fundamental frequency is called first overtone. Frequency just over and above fundamental frequency is called first overtone. Frequency just above fundamental frequency is called first overtone. तो तीन लाइन हम लोग ने कौन से याद किए? Fundamental frequency is the lowest possible frequency and is called as first harmonic. Harmonics are integral multiples of fundamental frequency. And third line and the final one is the frequency just after the fundamental frequency is called as first overtone. अब ये तीन लाइन जब तक तुम्हें याद नहीं होते, ये वीडियो में पीछे जाओ, ये तीनों लाइन याद करो मन में. जब तक तुम अपने आप न बोल पाओ तब तक आगे देखने का चालू मत करो. एक बार ये तीनों लाइन याद हो गई फिर आगे का ये स्टेप्स देखना चालू करो. फर्स्ट थिंग विच वी लर्न, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी is called as is the lowest possible frequency. Fundamental frequency is the lowest possible frequency and is called as first harmonic. Second line, harmonics are integral multiples of fundamental frequency. Third line, first overtone is the frequency just after fundamental frequency. Fundamental के बाद जो अगला frequency है उसको क्या बोलेंगे? First harmonic. फिर से एक बार, lowest possible frequency is called fundamental frequency which is also called as first harmonic. Harmonics are integral multiples of fundamental frequency. The frequency just above the fundamental frequency is called as first overtone. Now let us start our analysis on the basis of these three concepts. To start with, let us take the first case, string fixed at both ends. दोनों साइड string fixed है. दोनों साइड स्ट्रिंग फिक्स कब था? हम लोग ने एग्जांपल लिया था, जैसे एक स्ट्रिंग लिया था, एक साइड से हाथ में पकड़ के रखा था, दूसरे साइड से भी हाथ में पकड़ के रखा था, तो दिस वाज स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. और दूसरा, अगर स्ट्रिंग एक ही जगह पे फिक्स्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड ओनली. सिर्फ एक जगह पे फिक्स्ड है तो वी विल कॉल इट स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड ओनली. ये सब मैंने स्ट्रिंग वेव्स में तुम्हें सिखाया हुआ है. तो हम लोग ने ये टॉपिक स्ट्रिंग वेव्स में क्यों नहीं पढ़ा? बिकॉज जो हार्मोनिक्स का कंसेप्ट है, वो जो हम लोग हार्मोनिक्स के बारे में बात करेंगे, दैट विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ साउंड. आवाज का क्वालिटी कैसा है वो उसके नंबर ऑफ हार्मोनिक्स पर डिपेंड होता है. तो इसीलिए दिस टॉपिक हार्मोनिक्स इज मोर लिंक्ड टू द साउंड वेव्स. द टॉपिक ओवरटोन्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मोर लिंक्ड टू साउंड वेव्स. इसीलिए हम लोग ये साउंड वेव्स चैप्टर में पढ़ रहे हैं. पहले हम लोग स्ट्रिंग वेव्स के बारे में, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स का बात करेंगे. फिर हम लोग ऑर्गन पाइप जो कि साउंड का इक्विपमेंट है, उसमें भी हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स का बात करेंगे. ओके, सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. दोनों एंड पे मैंने हाथ से पकड़ के रखा है या दोनों एंड वॉल है और हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क से उसका ऑसिलेशन करा रहे हैं.
अगर हाथ से पकड़ा हुआ है तो हाथ हम लोग ऑसिलेट करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। ट्यूनिंग फॉर्क अगर हम लोग ने वॉल लगाया हुआ है दोनों साइड में, फिक्स करके वॉल लगाया हुआ है, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है दोनों साइड में वॉल, तो ट्यूनिंग फॉर्क से हम लोग स्टेशनरी वेव बनाएंगे एंड दैट विल लीड टू दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इसका हम लोग ने दो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। वन इज रेजोनेटिंग लेंथ, रेजोनेटिंग लेंथ L is equal to P lambda by 2. P is the integer, lambda is the wavelength, L is the length of the wire. ये मैंने तुम्हें बताया है। Second thing which I have told you is the resonating frequency which is PV by 2L. Resonating frequency का फॉर्मूला है PV by 2L for string fixed at both ends. Okay, so let us start with the analysis. Okay, first P का वैल्यू हम लोग चालू करेंगे एक एक करके। P इज एन इंटीजर, तो हम लोग ने P का वैल्यू यहाँ पे 1 से चालू किया। P का वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे क्या चालू किया, 1 से। नेचुरल नंबर्स मान लो, नेगेटिव नंबर्स का हम लोग इधर बात नहीं कर रहे क्योंकि नेगेटिव लेंथ नहीं होता है, नेगेटिव वेवलेंथ भी नहीं होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद 1। तो P का वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे 1 लैम्बडा बाय 2 आएगा। P का वैल्यू अगर 2 है तो 2 लैम्बडा बाय 2 आएगा, मतलब लैम्बडा 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो लैम्बडा बचेगा। फिर P का वैल्यू अगर 3 है तो 3 लैम्बडा बाय 2 आएगा। तो these are the various resonating lengths. Resonating length corresponding to P is equal to 1, lambda upon 2. Resonating length corresponding to P is equal to 2, 2 lambda upon 2 मतलब lambda. Resonating length corresponding to P is equal to 3, 3 lambda by 2. Then let us come to the resonating frequency. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है PV by 2L, P को रखो 1, 1V by 2L, P को रखो 2, 2V by 2L, P को रखो 3, 3V by 2L। ओके, अब इसमें सबसे लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी कौन सा है? हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी दिखे, मैं रेड कलर से यहां पे बता देता हूं। ऑफ दीज 3 हु इज द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी? तो ऑफ कोर्स यू गेस इट करेक्टली, 1V by 2L इज द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। तो 1V by 2L जो लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, इसको मैंने सिंबल यूज किया N नॉट, N ओरिजिनल। O मैंने क्यों डाला? ओरिजिनल के लिए। This is the original frequency, this is the lowest possible frequency, this is the fundamental frequency. Because lowest possible frequency is called as first harmonic, it is also called as fundamental frequency. Lowest possible frequency है fundamental frequency, उसका दूसरा नाम है first harmonic। तो ये जो N नॉट हमारे पास इधर आया है, this is the lowest possible frequency which is 1V by 2L। 1V by 2L इन तीनों में से लोएस्ट है, देखो 1V by 2L, 2V by 2L, 3V by 2L and so on। इसमें सबसे लोएस्ट कौन सा है? 1V by 2L, that is the fundamental frequency। उसको सिंबल यूज किया हम लोग ने N नॉट। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज गिवन बाय दिस P is equal to 1। इससे लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी मिलेगा। रेजोनेटिंग लेंथ आएगा P lambda by 2, which is 1 lambda by 2 because P is 1। resonating frequency N is PV by 2L, P को 1 रखेंगे तो 1V by 2L आएगा। तो this is the fundamental frequency, the lowest possible frequency corresponding to P is equal to 1। अब ये तो आ गया हमारे पास, ये हम लोग का स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। देखो ये रस्सी मैंने लाल कलर से दिखाया है और यहाँ पे भी एक वॉल है, यहाँ पे भी एक वॉल है। चाहे दोनों जगह पे हाथ ले लो, चाहे दोनों जगह पे वॉल फिक्स्ड ले लो। तो हम लोग अब इसमें रेजोनेंस कैसा दिखेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसा दिखेगा, रेजोनेटिंग लेंथ कैसा दिखेगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसा दिखेगा, दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस नाउ। तो यहाँ पे देखो हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी L इज 1 लैम्बडा बाय 2 के लिए है कि नहीं? 1 लैम्बडा बाय 2 मतलब लैम्बडा बाय 2 मतलब क्या? लैम्बडा बाय 2। लैम्बडा जो होता है वो क्रेस्ट और ट्रफ होता है। ये मैंने वेव्स में तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था। लैम्बडा जो होता है वो क्या होता है? क्रेस्ट एंड ट्रफ, स्टेशनरी वेव के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग वेव्स का बात कर रहे हैं। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ मेक अप अ वेवलेंथ। तो हाफ द वेवलेंथ कितना होगा? लैम्बडा बाय 2 मतलब हाफ द वेवलेंथ। हाफ द वेवलेंथ मतलब सिर्फ क्रेस्ट होगा। तो हाफ द वेवलेंथ मैंने यहां पे अगर बनाया तो वी विल हैव ओनली क्रेस्ट। ओके, यहां से रिफ्लेक्शन होगा और ये हम लोग का ऐसा स्टेशनरी वेव बन जाएगा जिसमें सिर्फ एक ही लूप होगा, ओनली वन लूप। ओके, एक ही लूप है यहां पे।
तो दिस इज द डायग्राम फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, सो इजी। लैम्बडा बाय 2 लेंथ है, ये देखो ये टोटल लेंथ कितना है, लैम्बडा बाय 2, क्योंकि देखो लैम्बडा मैंने बताया तुम्हें सिर्फ क्रेस्ट होता है और रिफ्लेक्ट होके ये नीचे ऐसा बन जाएगा। ये ट्रफ नहीं है, ये स्टेशनरी वेव बन गया। ये क्रेस्ट मैंने बनाया था और क्रेस्ट रिफ्लेक्ट होके ट्रफ बन के आ रहा था। जब वेव गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्शन आउट ऑफ फेज होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, तो क्रेस्ट रिफ्लेक्ट्स एज ट्रफ एंड द स्टेशनरी वेव इज फॉर्म, जिसमें सिर्फ एक ही लूप रहेगा, सिर्फ एक लूप का स्टेशनरी वेव होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवर टू। अब फंडामेंटल के बाद ये तो हम लोग ने देख लिया 1v/2l, p इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग लेंथ है 1 लैम्बडा बाय 2, p इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग लेंथ है 1 लैम्बडा बाय 2, फ्रीक्वेंसी है 1v/2l। तो ये तो हम लोग का हो गया लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका नाम है फर्स्ट हार्मोनिक। उसके बाद कौन सा फ्रीक्वेंसी है, तो उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी है p इज इक्वल टू 2 के लिए। p इज इक्वल टू 2 के लिए पहले तो लेंथ देख लेते हैं, एल इज p लैम्बडा बाय 2, मतलब 2 लैम्बडा बाय 2, 2 कैंसिल, हम लोग को मिल जाएगा लैम्बडा। तो इसीलिए हम लोग का p इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाय 2, 2 कैंसिल, l इज इक्वल टू लैम्बडा। देन फ्रीक्वेंसी n इज pv/2l, n इज pv/2l, p को रखा 2 तो 2v/2l। तो अगर 1v/2l को मैंने n0 बोला है, अगर 1v/2l को मैंने n0 बोला है तो 2v/2l हो जाएगा 2n0, डबल हो जाएगा कि नहीं, 1v/2l का डबल है 2v/2l, तो अगर ये n0 है ये तो 2n0 है। तो 2n0 हम लोग का डबल द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया, डबल द हार्मोनिक हो गया। फर्स्ट हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये, तो ये उसका डबल है। ये फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। ये पहला वाला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसका दूसरा नाम है फर्स्ट हार्मोनिक, तो ये उसका डबल है, इसीलिए इसका नाम है सेकंड हार्मोनिक। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया सेकंड हार्मोनिक p इज इक्वल टू 2 के लिए, और इसका दूसरा नाम है फर्स्ट ओवरटोन। इसका ऐसा नाम मैंने क्यों दिया, फर्स्ट ओवरटोन नाम क्यों दिया, बिकॉज इफ यू रिमेंबर द थर्ड लाइन, द फ्रीक्वेंसी जस्ट अबाउ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आफ्टर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, ये हमारा तीसरा लाइन है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जस्ट बाद जो आएगा वो होगा हमारा फर्स्ट ओवरटोन, और बिकॉज दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज सेकंड हार्मोनिक। हार्मोनिक्स आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल तो वो सेकंड हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक का डबल तो सेकंड हार्मोनिक हो गया। तो इसीलिए सेकंड वाले का नाम है सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि फंडामेंटल के जस्ट बाद है इसलिए फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक का इंटीग्रल मल्टीपल है इसलिए सेकंड हार्मोनिक। ओके, तो एल इज लैम्बडा एंड फ्रीक्वेंसी आएगा 2n0। अब एल इज लैम्बडा, लैम्बडा वेवलेंथ हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो एज आई टोल्ड यू, वन वेवलेंथ कंप्राइजेस ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ओके, अब जब यहां पे रिफ्लेक्ट होगा तो ट्रफ विल बी रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट एंड देन वी विल हैव अ ट्रफ हियर। ओके, ट्रफ रिफ्लेक्ट्स एज क्रेस्ट एंड देन वी विल हैव अ ट्रफ। तो हम लोग का स्टेशनरी वेव बन गया जिसमें दो लूप है, दो लूप से हमारे पास इधर। ओके, अब थोड़ा फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचो, यहां पे लेंथ एल में एक ही लूप था, यहां पे लेंथ एल में दो लूप है, तो डबल फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए 2n0 डबल फ्रीक्वेंसी, दैट इज द मीनिंग ऑफ द 2n0। इसी से तुम दिमाग लगा के सोच सकते हो कि थर्ड हार्मोनिक में हमारे पास यहां पे 3 लूप आएंगे और 3 लूप लाएंगे और फ्रीक्वेंसी ट्रिपल होगा, 3 लूप्स विल करस्पॉन्ड टू द 3 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम्स n0 होगा। ओके, सो लेट अस सी इफ दिस इज करेक्ट। सेकेंड हार्मोनिक के बाद हमारा p इज इक्वल टू 3 के लिए आएगा 3 लैम्बडा बाय 2 which is 3v/2l which is 3 times the fundamental frequency। तो 3 times fundamental है, 3 times fundamental मतलब 3 times फर्स्ट हार्मोनिक मतलब थर्ड हार्मोनिक, इसीलिए पहला नाम मैंने दिया थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक्स आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे। ओके,
इंटीग्रल मल्टीपल है, p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 3। पहले n नॉट आया, फिर 2 n नॉट आया, फिर 3 n नॉट आया, तो 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक, 4 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फोर्थ हार्मोनिक, 5th टाइम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिफ्थ हार्मोनिक, ऐसे होते जाएगा। तो 3 लैम्बडा बाय 2 मतलब क्या, लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 2। 3 लैम्बडा बाय 2 को मैं क्या सोच सकता है, लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 2। तो लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 2 कैसा दिखेगा, ये हो गया हमारा लैम्बडा और ये लैम्बडा बाय 2 और एक। ओके, पहले यहां से यहां तक लैम्बडा, क्रेस्ट और ट्रफ लैम्बडा, फिर लैम्बडा बाय 2। अब रिफ्लेक्शन होगा, crest will be reflected as trough and we will have alternate crest and trough. If you see carefully, we have 3 loops here, 3 loop है, तो इसीलिए frequency 3 गुना है। That is what we see here. Frequency is 3 times the fundamental frequency. Okay, तो ऐसा हमारा एनालिसिस है for string fixed at both ends. अब ये थर्ड हार्मोनिक है, इसका दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट ओवरटोन के बाद अगला ओवरटोन कौन सा आएगा, सेकेंड ओवरटोन, फिर अगला जो आएगा वो थर्ड ओवरटोन, फिर अगला जो आएगा वो फोर्थ ओवरटोन, ऐसे ओवरटोन्स हमारे पास आते जाएंगे। ओके, फंडामेंटल के बाद जो अगला है वो फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद अगला है वो सेकेंड ओवरटोन, उसके बाद अगला होता तो थर्ड ओवरटोन, उसके बाद अगला होता तो फोर्थ ओवरटोन, लाइक दिस। नाउ कमिंग टू स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड ओनली, एक ही एंड पे स्ट्रिंग फिक्स्ड, तो एक ही एंड पे स्ट्रिंग फिक्स्ड है, तो हम लोग ने दूसरे साइड में देखा था, हम लोग ने बहुत ही पतला धागा बांधा था जो दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक साइड हम लोग पकड़ के रखते हैं और दूसरे साइड भी हमारे पास सपोर्ट है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, वो धागा हमें दिखाई नहीं देगा, स्ट्रिंग दिखाई देगा बट दूसरा धागा दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा हम लोग ने स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड का कल्पना किया था, ऐसे हमने स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड इमेजिन किया था। ओके, तो वहां पे हमारे पास रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था p माइनस हाफ इंटू लैम्बडा बाय 2, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला p माइनस हाफ इंटू v बाय 2l। जहां यहां पे p है वहां यहां पे p माइनस हाफ आ गया, तो वहां p लैम्बडा बाय 2, यहां पे p माइनस हाफ लैम्बडा बाय 2। जहां यहां पे p है यहां पे p माइनस हाफ आएगा, n इज pv बाय 2l, n इज p माइनस हाफ इंटू v बाय 2। ओके, तो ऐसा हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट, पुट p इज इक्वल टू 1, तो हमारा लेंथ आएगा लैम्बडा बाय 4। ये कैलकुलेशन तुम आराम से बैठ के करो, वो आएगा लैम्बडा बाय 4, और फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो आएगा 1v बाय 4l, और ये लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, इसको मैंने बोला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी व्हिच इज 1v बाय 4l एंड दैट इज करस्पॉन्डिंग टू लेंथ, रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ लैम्बडा बाय 4। तो हम लोग का रेजोनेटिंग लेंथ लैम्बडा बाय 4 है। लैम्बडा बाय 4, थोड़ा सोचो, अगर हम लोग का लैम्बडा का वैल्यू मैंने तुम्हें कई बार बताया है, लैम्बडा मतलब वन वेवलेंथ, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ, तो लैम्बडा बाय 2 मतलब सिर्फ क्रेस्ट, लैम्बडा बाय 4 मतलब क्रेस्ट का भी आधा, क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ, तो क्रेस्ट का भी आधा, तो हम लोग का क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ कैसा दिखाई देगा, इट विल लुक लाइक दिस, ऐसा। ओके, सो लाइक दिस we will have quarter of wavelength looking like this। ये quarter of wavelength है, क्योंकि पूरा wavelength मतलब ऐसे ऐसे पूरा क्रेस्ट और ट्रफ, ये क्रेस्ट का सिर्फ आधा हिस्सा है, ये क्रेस्ट का कितना हिस्सा है, आधा। ओके, तो दिस इज लेंथ L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। ओके, क्योंकि पूरा वेवलेंथ इतना है, देखो पूरा वेवलेंथ इतना है, तो लैम्बडा बाय 2 इधर तक, लैम्बडा बाय 4 इधर तक, सिर्फ क्रेस्ट का आधा ऊपर जाने वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट होके वो नीचे का आता है। ओके, तो दिस इज लैम्बडा बाय 4। ओके, तो ये हम लोग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, वन एंड नॉट। अब थर्ड हार्मोनिक मैंने बोला, थर्ड हार्मोनिक क्यों बोला, सेकंड हार्मोनिक गायब हो गया क्या, सेकंड हार्मोनिक नहीं है क्या, यस, सेकंड हार्मोनिक इज एब्सेंट, इट इज मिसिंग। क्यों, क्योंकि हम लोग ने p इज इक्वल टू 2 लिया, तो लेंथ आया, कैलकुलेशन करो, p को 2 डालो, what you will get is 3 lambda by 4 and you will get a frequency 3v by 4l। देखो 1v by 4l के बाद 2v by 4l नहीं आया यहां पे, 1v by 4l के बाद इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 2v by 4l आना चाहिए, 2v by 4l आया ही नहीं, डायरेक्ट आया 3v by 4l, तो इसीलिए ये 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए थर्ड हार्मोनिक है, तो इसलिए मैंने यहां पे नाम दिया थर्ड हार्मोनिक। अब फंडामेंटल के बाद जो अगला फ्रीक्वेंसी है
वो तो हमारा ओवरटोन होता है, फर्स्ट ओवरटोन यहां पे लिखा हुआ है। फंडामेंटल के बाद अगला फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन है, इसीलिए इसका दूसरा नाम फर्स्ट ओवरटोन है। यहां पे थर्ड ओवरटोन सेकंड ओवरटोन मत लिखो, बिकॉज फंडामेंटल के बाद जो अगला आएगा दैट विल ऑलवेज बी फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद जो अगला आएगा दैट विल ऑलवेज बी सेकंड ओवरटोन, उसके बाद जो अगला आएगा वो थर्ड ओवरटोन, ऐसे होगा। हार्मोनिक्स में कंडीशन जरूरी है, इंटीग्रल मल्टीपल्स होना, 1v/2l 3v/2l, तो ये थ्री का मल्टीपल है, इसीलिए ये थर्ड हार्मोनिक है। हार्मोनिक्स में इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए फंडामेंटल। ओवरटोन्स में तो ऐसा कोई कंडीशन लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हर इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, नहीं। फंडामेंटल के बाद जो भी है वो फर्स्ट ओवरटोन, अगला जो भी होगा वो सेकंड ओवरटोन, अगला जो भी होगा वो थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन। ओके, तो थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, इसका लेंथ है 3λ/4। 3λ/4 मतलब हम लोग सोच सकते हैं λ/2 प्लस λ/4, λ/2 प्लस λ/4। λ/2 मतलब आधा वेवलेंथ, तो लेट मी फर्स्ट मेक आधा वेवलेंथ। आधा वेवलेंथ मतलब सिर्फ पूरा क्रेस्ट, पूरा क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ मतलब फुल वेवलेंथ, आधा वेवलेंथ मतलब सिर्फ क्रेस्ट, और λ/4 मतलब अगले का आधा, ट्रफ का आधा, क्योंकि पूरा ट्रफ हो जाता तो λ/2 हो जाता, तो λ/2 मतलब क्रेस्ट प्लस λ/4 मतलब आधा ट्रफ। तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा हो जाएगा, ये मच्छी जैसा दिखाई देगा, फिश जैसा। तो दिस इज द डायग्राम फॉर थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, फिश जैसा डायग्राम। फिर नेक्स्ट आएगा फिफ्थ हार्मोनिक, क्यों? P = 3 लिया, तो लेंथ आया, कैलकुलेशन करेंगे, P 3 डालेंगे तो 5λ/4 आएगा, और फ्रीक्वेंसी आएगा 5v/4l विच इज 5 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 5 टाइम्स है इसीलिए फिफ्थ हार्मोनिक। अब फंडामेंटल के बाद जो अगला आता है तो फर्स्ट ओवरटोन होता है, फर्स्ट ओवरटोन के बाद अगला जो आता है वो सेकंड ओवरटोन होता है, इसीलिए सेकंड ओवरटोन है। अब 5λ/4 वी कैन थिंक एज लैम्बडा प्लस λ/4, तो लैम्बडा मतलब पूरा वेवलेंथ, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ, तो क्रेस्ट और ट्रफ में पूरा बनाएगा यहां पे पहले, फिर λ/4 मतलब आधा क्रेस्ट, λ/4 मतलब यहां से यहां λ/4, ये पूरा लैम्बडा प्लस λ/4। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये उल्टा हो जाएगा लाइक दिस, ऐसा स्टेशनरी वेव बनेगा लाइक दिस। तो ये हम लोग का फिफ्थ हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन है। तो व्हाट वी कैन से इज वी हैव फर्स्ट हार्मोनिक, देन थर्ड हार्मोनिक, देन फिफ्थ हार्मोनिक, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर देयर। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड के लिए ओनली ऑड हार्मोनिक्स है, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स है, ऑल हार्मोनिक्स आर नॉट प्रेजेंट। यहां पे ऑल फ्रीक्वेंसीज था मतलब ऑल हार्मोनिक्स था, यहां पे सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसीज है तो ऑड हार्मोनिक्स है। ऑड हार्मोनिक्स रहेंगे किसमें? स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। So this is the analysis of string fixed at both ends and string fixed at one end only. Now let us start the topic corresponding to sound waves, which is closed organ pipe and open organ pipe. Open organ pipe मतलब क्या? जो दोनों साइड से ओपन रहे। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों साइड से ओपन रहे। देखो यहां से मेरा आंख दिखाई दे रहा है, अगर देखोगे अच्छे से तो इफ यू सी केयरफुली मेरा आंख दिखाई दे रहा है। So this pipe is open at both ends. Pipe open at both ends. इसके रिजल्ट्स हम लोग ने देखा था where like string fixed at both ends. तो string fixed at both ends के जगह पे हमारे पास क्या आएगा? Pipe open at both ends. Pipe open at both ends. तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे pipe open at both ends. इसका दूसरा नाम क्या है? Open organ pipe. ओपन ऑर्गन पाइप। ओके, फिर यहां पे हमारे पास क्या आएगा? स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड की जगह पे हमारे पास आएगा पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अब पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का एग्जांपल कौन सा है? तो वी हैव दिस ग्लास, मान लो। सो दिस इज ओपन एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड। तो दिस इज पाइप ओपन एट वन एंड, एक एंड पे ओपन है, तो हम लोग ने यहां पे लिख दिया स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड इज सेम एज पाइप ओपन एट वन एंड।
So let us start here. Right here, pipe open at one end only. Okay, pipe open at one end. तो वन एंड ओपन पाइप है, तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूलास भी सेम रहेगा, एनालिसिस भी सेम रहेगा, सिर्फ ये रस्सी हटके, यहाँ पे रस्सी ना रह के हमारे पास क्या रहेगा, पाइप रहेंगे. लेट मी रिमूव दिस. जो नहीं चाहिए हमें वो हम लोग हटा देते हैं, ये रस्सी हटा देते हैं. और रस्सी जहां जहां पे था उसके बदले हमारे पास क्या आ जाएगा, पाइप. अब ये जो हम लोग ऑर्गन पाइप बात कर रहे हैं, ये ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या होता है. तो ओपन ऑर्गन पाइप मतलब पाइप ओपन एट बोथ एंड, बांसुरी जैसा. जैसे हम लोग कृष्ण भगवान का बांसुरी सबको याद है, तो वो जो कृष्ण भगवान का बांसुरी है उसमें दोनों साइड ओपन रहता है कि दोनों साइड एंड्स कैसा रहता है, ओपन. ओके, so that is open organ pipe and closed organ pipe is the mouth organ pipe. माउथ ऑर्गन पाइप एक साइड में क्लोज रहता है. शोले पिक्चर में अगर तुमने देखा रहेगा, एक साइड में क्लोज था, वो अमिताभ बच्चन बजाता था, तो अमिताभ बच्चन जो माउथ ऑर्गन पाइप बजा रहा था वो एक साइड से क्लोज था, एक साइड से ओपन था. और बांसुरी जो कृष्ण भगवान बजाते हैं वो दोनों साइड से ओपन है, इस एंड पे भी ओपन, उस एंड पे भी ओपन. फिर कृष्ण भगवान ऐसे बांसुरी बजाते हैं, ये साइड भी ओपन एंड वो साइड भी ओपन एंड. ओके, सो लेट मी फर्स्ट मेक पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, मतलब ओपन ऑर्गन पाइप. यहां पे भी मैंने वही बनाया, ओपन ऑर्गन पाइप. यहां पे भी मैंने वही बनाया, ओपन ऑर्गन पाइप. ओके, और यहां पे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक एंड क्लोज्ड रहेगा, तो ये एंड से मैं ऐसे क्लोज कर देता हूं, यहां पे क्लोज्ड है. यहां पे एक एंड क्लोज्ड. सेम डायग्राम बनेगा, कुछ अलग नहीं बनेगा, सेम. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द प्रेशर. साउंड वेव्स, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसमें साउंड जाने वाला है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव जाने वाला है. तो एनालिसिस सब सेम रहेगा, जो यहां पता है वैसा ही होगा. यहां पे भी एलिस लैम्डा बाय 2 ये आएगा, लेकिन यहां पे हम लोग प्रेशर के टर्म्स में पहले देखेंगे. प्रेशर देखो, ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन था x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव. x इज इक्वल टू, लेट मी राइट इट हियर, ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव. और प्रेशर वेव का इक्वेशन अगर तुम्हें याद रहेगा वो भी ऐसे ही था, p इज इक्वल टू पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव. तो जैसा डिस्प्लेसमेंट हम लोग का स्ट्रिंग वेव्स का इक्वेशन था वैसा ही प्रेशर का है. तो जैसा हम लोग पहले डायग्राम बनाए थे डिस्प्लेसमेंट ट्रांसवर्स वेव में, वैसा ही डायग्राम प्रेशर का भी बनेगा. तो लेट मी मेक द प्रेशर डायग्राम. पहला एल इज लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 2 मतलब पूरे वेवलेंथ का आधा, मतलब सिर्फ क्रेस्ट. ये देखो लैम्डा टोटल फिर से दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो पूरा लैम्डा क्या है, क्रेस्ट एंड ट्रफ. ओके, तो हाफ वेवलेंथ कितना होगा, सिर्फ क्रेस्ट. तो सिर्फ क्रेस्ट मैंने बना लिया यहाँ पे, यहां से यहां. फिर रिफ्लेक्शन हुआ यहां से जैसे पहले हो रहा था. ओके, लाइक दिस. और यहां पे कैसे आएगा, लैम्डा. लैम्डा मतलब क्या, क्रेस्ट एंड ट्रफ. ये एल जो पूरा लेंथ है, ये एल क्या है, पूरा लेंथ ऑफ द ऑर्गन पे. यहां पे भी एल क्या है, पूरा लेंथ, विच इज लैम्डा बाय 2 यहां पे. ओके, और यहां पे एल कितना है, लैम्डा. ओके, क्रेस्ट एंड ट्रफ. फिर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये एस. ओके, फिर 3 लैम्डा बाय 2 मतलब लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, तो 3 लैम्डा बाय 2. फिर यहां से यहां से एस. फिर यहां पे क्या है, लैम्डा बाय 4. लैम्डा बाय 4 मतलब क्या, क्वार्टर वेवलेंथ, क्रेस्ट का भी आधा. तो यहां से यहां, फिर रिफ्लेक्शन से यहां से. ओके, फिर यहां पे 3 लैम्डा बाय 4 मतलब लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4. तो लैम्डा बाय 2 मतलब क्रेस्ट प्लस लैम्डा बाय 4 मतलब ऐसे आधा, ट्रफ का आधा. फिर यहां से रिफ्लेक्शन होगा ऐसे. फिर यहां पे 5 लैम्डा बाय 4, p इक्वल टू 3, 5 लैम्डा बाय 4. पहले जैसे कैलकुलेशन किया था वैसा ही कैलकुलेशन है सब. तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4, लैम्डा मतलब क्रेस्ट और ट्रफ, और फिर लैम्डा बाय 4. फिर यहां से रिफ्लेक्शन लेंस. तो ऐसे डायग्राम्स हमारे प्रेशर के लिए बनेंगे. किसके लिए बनेंगे, प्रेशर. अब डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें. ओके, तो अगर मैं थोड़ा याद दिला दूं तुम्हें इक्वेशन, प्रेशर का इक्वेशन ऐसा है, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कैसा था.
लेट मी राइट इट हियर, S इज इक्वल टू एस नॉट, साइन के बदले यहां पे कॉस आ रहा था, S इज इक्वल टू एस नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ओके, तो अगर साइन के बदले कॉस आया था कि नहीं, यहां पे डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव को लिखना है, साउंड वेव को लिखना है, तो साइन के बदले यहां पे कॉस आया था। प्रेशर में साइन था, डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म्स में कॉस है। जहां पे साइन मैक्सिमम होता है वहां पे कॉस मिनिमम होता है, जैसे साइन ऑफ 91 कॉस ऑफ 90 0, और जहां पे साइन मिनिमम होता है वहां पे कॉस मैक्सिमम होता है, जैसे साइन ऑफ 0 0 कॉस ऑफ 0 1। तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में कैसा दिखाई देगा, सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा उल्टा हो जाएगा। देखो यहां पे प्रेशर का मिनिमा है, प्रेशर का मिनिमा है तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा मैं यहां पे मैक्सिमा बना दिया। ओके, और यहां पे प्रेशर का मैक्सिमा है तो डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा आएगा, और यहां पे प्रेशर का मिनिमा है तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा आएगा। तो जो मैं ब्लैक कलर में बना रहा हूं ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा डायग्राम बनेगा ब्लैक कलर में। यहां पे भी देखो प्रेशर का मिनिमा है तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा आएगा, यहां पे प्रेशर का मैक्सिमा है तो प्रेशर मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा आएगा, यहां पे प्रेशर का मिनिमा है, रेड कलर मिनिमा प्रेशर, तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा आएगा ऐसे। और यहाँ पे प्रेशर का मैक्सिमा है, डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा आएगा, यहाँ पे प्रेशर का मिनिमा है, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा आएगा। ओके, तो इसीलिए ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो जहां पे प्रेशर मिनिमम है, रेड कलर में प्रेशर है, रेड कलर प्रेशर वाला था, ब्लैक कलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, ब्लैक कलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। प्रेशर जब मिनिमम है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, यहाँ पे प्रेशर मिनिमम है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, यहाँ पे प्रेशर मिनिमम है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। अब बस इन डॉट्स को जोड़ दो, तो ऐसा कि ब्लैक कलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो यहां पे देखो प्रेशर का मिनिमा डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम, प्रेशर का मैक्सिमा डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम, प्रेशर का मिनिमा डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम, प्रेशर का मैक्सिमा डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम, प्रेशर का मिनिमा डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम, प्रेशर मैक्सिमा डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम, प्रेशर का मिनिमा डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम। फिर जोड़ दो, ब्लैक कलर में जो हम लोग जोड़ रहे हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ओके, और यहां पे भी ऐसा ही है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में देखना। ये तो प्रेशर का है रेड कलर में, जहां पे प्रेशर मिनिमम है वहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, मैक्सिमम, और जहां पे प्रेशर मैक्सिमम है वहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। तो जोड़ दो, उल्टा है। देखो यहाँ प्रेशर मिनिमम तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, यहाँ प्रेशर मैक्सिमम तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम।